So let's start. So here you can see the Android architecture, right? So basically, Android architecture is created with the help of stack of layers. As you can see, there are different layers, right? Ma'am, Like, yes. can you please start the recording? हाँ. Okay. So as we were discussing, Android architecture is made with the help of a stack of different layers, right? For example, there is layers like application layer, application framework, libraries, Linux kernel, Android runtime, right? So those are the different layers. Now there is an interesting fact about Android architecture that the upper layer is depend on, or you can say based on the lower layer. Okay, it rely on the lower layer. So let's start the architecture. So the first layer we are going to learn is Linux kernel. So basically, Linux kernel is the chief component of Android architecture, right? So basically, it interacts with the hardware and software both. Okay, it works as an interpreter, you can say, right? Or you can say it communicates with hardware and software both. Okay, so basically in this layer there are different kinds of driver. As you can see, there are display drivers, keypad driver, camera driver, Wi-Fi driver, flash memory driver, audio driver, right? So based on the different requirements, there are different kind of drivers. For example, camera driver. Let's take an example of camera driver. So suppose you install Android OS in a compatible device. Okay, so as you will install that Android OS, okay, so the Linux kernel will search for the camera, and then it will make the camera available to the system by using the camera driver, right? So this way it will work. So basically all the main functionalities are like all the main functionalities of the system are based on the Linux. Okay. Then the upper layer is libraries. So in this layer, there are different kinds of libraries available, as you can see, right? So this layer is next to the Linux layer, right? So basically this layer, libraries, is using the Linux kernel to interact with the hardware, right? And all of the libraries are basically built in C and C++. Okay. Can anyone tell me the advantages of creating a library, or you can say code in C and C++? Which are the advantages? परफॉर्मेंस Performance, कैसे performance? मेमोरी मैनेजमेंट मैन्युअली कर सकते हैं Yes, memory management manually कर सकते हैं. चलो एक advantage. फिर दूसरा advantage? Reusability. Reusability तो आप Python में कोड करोगे तो भी होगा. અરે એ રીતે નહીં, reusability in the sense કે એક જ વખત તમારે બનાવવી પડશે અને તમે ગમે ત્યાં એને કોલ કરાવી શકશો ના હાથે. એ તો તમે Python માં પણ કરાવી શકો ક્રોસ પ્લેટફોર્મ થી. ચલો આ બેના જ ડિફરન્સ તમે વિચારો. What is the difference between like C or C++ versus Java? Major difference. તો લાઈક મેજર ડિફરન્સ એ છે કે હા Pointers. Pointers? pointers is a negative point for C and C++. Na? It gives you the direct access to memory. Java runs Any on other? virtual machine and while C++ compiles to native code. Yes. Then The major difference is Java is an object-oriented programming language.
C++ is also object oriented. C is procedural oriented. ओके, स्टार्टिंग में किसी ने बताया था परफॉर्मेंस, राइट? Actually, that's the reason why, if you will see, most of the libraries are basically created in C and C++. And because we can directly communicate with the hardware. Yes. And the thing is, कैसे आपका जो कोड है ना, आप सेम सपोज के सेम टास्क आप C या C++ की मतलब लैंग्वेज से क्रिएट करो, सेम मतलब फंक्शनैलिटीज, and if you will create with the help of Java, I'm not saying like 1 to 2 line code or simple practicals जो आप अभी लैब में परफॉर्म कर रहे हो, I'm talking about the bigger picture, ठीक है? तो ज्यादा एफिशिएंसी कौन से कोड की रहेगी, मतलब कौन जल्दी ज्यादा आउटपुट देगा, प्रोसेसिंग किसका फास्ट रहेगा? So that is the C and C++ language. Why? Because it is not dependent on any other libraries. ठीक है, यहाँ पे पाइथन में और उसमें आपका डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी. So basically you will notice even the Python libraries are built in C and C++. I'm not saying all the libraries, but few of the libraries. Okay. So basically fast procedural के लिए मतलब फास्ट प्रोसीजर ऑफ डेटा के लिए हम C and C++ languages यूज करते हैं. So basically these libraries are created with the help of C and C++ languages. Okay, now let's see which are the libraries available. So the libraries are like Surface Manager, OpenGL, ES, SGL, Media Framework, FreeType, SSL, SQLite, like that. Okay, then let's see the like what all these libraries do. So for example, there is a library WebKit, right? So basically WebKit क्या करेगा? It refers to the browser, okay, and it renders the display to hypertext content as in HTML content. So for that WebKit is used. Then there is SQLite, right? So basically SQLite क्यों use होता है? So it used to then it refers to the database engine used in Android for data storage purposes, as you already know, right? SQLite आपका data storage के लिए use कर सकते हो. Then there is OpenGL, or you can say SGL. So basically both OpenGL and SGL are cross-platform languages, and these are designed for 2D and 3D computer graphics. Okay. And basically if you talk about OpenGL, then it is used for rendering the graphics to the screen. Okay. Then there is मीडिया फ्रेमवर्क. तो मल्टीमीडिया के फीचर्स जो है, ठीक है, उसे हैंडल करने के लिए मीडिया फ्रेमवर्क यूज किया जाता है. देन देयर इज सरफेस मैनेजर. सो सरफेस मैनेजर क्या करता है कि इट रिफर्स टू द सरफेस मैनिपुलेशन परफॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ द डिवाइस. सो बेसिकली इन बैकएंड देयर इज ऑफ स्क्रीन बफरिंग, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन बफरिंग टेक्निक, आपका जो क्या बोलता है बफर होता है, उसके अंदर पहले जो भी इमेज आपको डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पे, उसका एक बैकअप और यू कैन से कॉपी जनरेट होती है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट दैट इज बीइंग लाइक शोन इन द स्क्रीन. ओके. So basically off-screen buffering is also responsible for the transparency of the window. Then there is SSL, right? तो SSL क्या होता है? Secure Socket Layer. So basically security related जो task होता है उसके लिए SSL हम use कर सकते हैं, ठीक है. So basically कैसे, जैसे कि establishing secure link between web browser, web server, like that. Okay. Then there is FreeType. तो FreeType ऐसा होता है, आपका जो फॉन्ट होता है उसे रेंडर करने के लिए हाई क्वालिटी क्या बोलते हैं पोर्टेबल फॉन्ट इंजन प्रोवाइड करता है, ठीक है. एंड libc. So basically libc is used to establish secure link. Okay. So these are the libraries. Now let's go to the next layer, which is Android runtime. So basically in Android runtime there are total two components.
core libraries and Dalvik virtual machine, right? So basically आपका जो Dalvik virtual machine है, ठीक है, it is somewhat like your JDK, sorry, JVM, not JDK, JVM, Java virtual machine, right? But difference क्या है कि this one is more optimized, okay? This one is optimized for low power CPUs. जैसे कि आपका फोन है, ठीक है, that is kind of low power CPU, ठीक है, तो उसके लिए we need Dalvik virtual machine. And आपका जो JVM रहता है, that will create dot class file, right? But our Dalvik virtual machine will not recognize the dot class file. So basically, it will create .dx file. Okay, that will be created automatically, like implicitly by the Dalvik virtual machine. Okay, and it is basically used for highly optimized work. Okay, so basically it is used for optimized memory and processing power. Okay, so there are the few advantages of Dalvik virtual machine over JVM, which are like optimized for small platform, right? Then it provides security, isolation, memory management, and multi-threading. Okay, then there is another component which is core libraries. So basically, core libraries are somewhat similar to your Java libraries, like your libraries in Java SE and Java ME, right? Java for standard edition and Java for mobile edition. But basically, these libraries are exclusively designed for the Android only. Okay. Otherwise, it provides somewhat few similar functionalities. Then the next layer is application framework. So basically, this is the important layer for the developers. Okay, as they want to work directly inside the layer, like they want to communicate with the Android applications, right? So there are few managers in this layer. As you can see, there is activity manager, there is window manager, content provider, view system, notification manager, location manager, resource manager, telephony manager, package manager, right? So basically, based on your requirement, मतलब कि आप कौन सी टाइप की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, उसके बेस पे आप different types of managers use करोगे. For example, if you want to access your current location, right? So at that time, you will require the location manager. If you want to make a phone call और उसके related कुछ काम करना है, at that time you will require the telephony manager, right? If you want to access the activity life cycle, उसके related कुछ काम है, then that is being managed by activity manager. Notification related कुछ है, then that is being managed by notification manager, right? Then there is content providers. So basically, content providers will provide the data sharing between applications. Okay. Then there is resource manager, right? So resource manager manages the different kinds of resources in an application. इसके अलावा फिर है हमारे पास package manager. So package manager is used for retrieving information related to app which are being installed in your system. Okay. Then there is window manager. So window manager is responsible for organizing the screen, right? So basically आपका जो window manager है वो lower level पे open GL है SGL है उसके साथ काम करेगा, right? Then there is view system. So basically view system is used to set the basically view system is a set of views to create the application UI. आपका application user interface create करना है, so that, for that you will use view system, ठीक है? And like कैसे आप सारे कंट्रोल सेट करते हो and all the things, तो उसका जो parent में रहता है उसके साइड, so that is view system, ठीक है?
and उसका जो upper layer है that is applications. So this is the layer which is visible to the user, right? In this layer there are different kinds of applications present, as you can see: home, contacts, phone, browser, etc. right? तो कैसे आप SMS करते हो, वेब ब्राउज एक्सेस करते हो, कॉन्टेक्ट एक्सेस करते हो, तो ये सारा आप एप्लीकेशन लेयर पे कर सकते हो, राइट? अब कैसे आप कोई भी नया फोन परचेस करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती है, राइट? सो बेसिकली हमारी जो एंड्रॉइड की ओएस है दैट इज सो मच फ्लेक्सिबल दैट इट अलाउज द Android companies, right, like MI or OnePlus, or you can take any of it, right? So it allows to change the UI and look and feel of the basic apps, right? If you see कि कैसे contacts आप access करो या फिर browser access करो, ठीक है? तो बेसिकली चलो कॉन्टेक्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट्स एक्सेस करो तो लुक एंड फील हर एक फोन में अलग अलग रहेगा, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड्रॉइड फोन. जैसे आपने MI का फोन ले लिया, ओप्पो का फोन ले लिया, वीवो का फोन ले लिया, वन प्लस ले लिया, कोई भी फोन ले लो, सैमसंग का फोन ले लिया, ठीक है, तो डायलर स्क्रीन है या वो सब कुछ है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, राइट? उसका UI. व्हाई? बिकॉज द एंड्रॉइड OS इज फ्लेक्सिबल, द कंपनी कैन डू दैट, राइट? इवन यू कैन ऑल्सो चेंज द स्क्रीन ऑफ दैट पर्टिकुलर मतलब UI, ठीक है? So basically, Android is providing so much flexibility to the developer to explore endless opportunities. Okay, and here our Android architecture is completed, like basics of the Android architecture. I hope it is clear to you all. So again, I'm repeating the sentence I have said earlier. कि जो अपर लेयर होता है वो लोअर लेयर पे बेस्ड रहता है, मतलब उसको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, देन इट विल टेक हेल्प फ्रॉम द लोअर लेयर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द UI कंट्रोल्स. ओके, आप उसे व्यूज भी बोल सकते हो, आप उसे यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स भी बोल सकते हो, ठीक है? सो दैट इज नथिंग बट लाइक बटन, टेक्स्ट व्यूज, देन एडिट टेक्स्ट बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लाइक दैट. ओके, अब इसके साथ मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि कैसे टू लर्न अबाउट द UI एंड ऑल द थिंग्स, ओके, लाइक लेआउट एंड UI. एंड अभी आप जो भी एडवांस में स्टडी करोगे तो उसके लिए डिफरेंट लाइक वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको जो कन्वीनियंट लगे वहां से भी आप सीख सकते हो, ठीक है? एंड इसी के साथ हम जो एंड्रॉइड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी देख लेते हैं. So here is the official website for Android. उसका documentation available है. So if you want to access any of the attributes or methods, you can see from here. Okay. As you can see, there is the content for view, right? So basically, different kinds of views are already explained in this documentation. So अगर कैसे ऑफिशियल कोई आप डॉक्यूमेंटेशन देखो ना, सो हियर इट इज, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, एंड्रॉइड इज अ वास्ट सब्जेक्ट, राइट? तो सारे के सारे जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स है वो आपके सिलेबस में कवर नहीं हुए हैं, ठीक है? बट विल ट्राई टू टीच यू एज मैनी कंपोनेंट्स एज वी कैन. बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इन एंड्रॉइड, okay, and in iOS also. So you can like start learning from yourself also, start learning by yourself also. Okay, ठीक है? Now let's start with the view. So basically what is a view? So view is like a basic building block for UI components. Okay,
and views are like added inside the view group. And what can I say? It's like as you can see over here as it's a rectangular area, okay, on the screen, and is responsible for drawing an event and handling, right? So basically different views का अलग अलग काम रहेगा उसका, right, as we have discussed earlier. So let's see one by one views. और हाँ, एक और चीज, कोई भी व्यूज देखने से पहले ये एक चीज देख लेते हैं. अगर आपको व्यूज का फोकस सेट करना है, ठीक है, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस मेथड रिक्वेस्ट फोकस. एंड अगर आपको उसका लिसनर सेट करना है, देन यू कैन यूज दिस मेथड सेट ऑन फोकस चेंज लिसनर. फोकस चेंज हो वैसा लिसनर चाहिए, एट दैट टाइम यू कैन यूज इट. एंड अगर आपको पर्टिकुलर व्यू को विजिबल रखना है या नहीं रखना, वैसे चेंज करना है, देन यू कैन यूज द सेट विजिबिलिटी. Okay, so these are the basic methods which are attached to each and every view. ठीक है, सब व्यू के ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हो. Okay, now let's see one by one views. So the first view we are going to learn is the text view. Okay, so text view कैसा रहता है? ये जो आप सिंपल सा एक लेबल जैसा देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड, दैट इज नथिंग बट अवर टेक्स्ट व्यू. ओके, सो लेट्स सी फ्यू ऑफ द attributes related to this text view. So the first attribute is ID. Just a minute. Yeah, so first attribute is ID. So to identify any of the views or you can say layout, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट को आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, फॉर दैट देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ आईडी. सो कैसे आप सब लोगों का यूनिक एनरोलमेंट नंबर है, वैसे ही सब व्यूज का यूनिक आईडी होगा. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट आईडी यू कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट और यू कैन से व्यू. ओके, सो एंड्रॉइड आईडी. अब आपको जो भी आईडी देना है आप दे सकते हो. ठीक है, सो providing the ID, suppose right, just a minute. Okay, then okay, you can give any of the ID whichever you want. Okay, so basically with the help of this ID you can access your view in the Java file. Okay, एंड आपको इस आईडी की हेल्प से उसके रिलेटिव में कोई दूसरा व्यू सेट करना है, देन ऑल्सो यू कैन डू दैट. CSC 2 वालों का तो मुझे पता है. CSC 1 में क्या बोलते हैं, बटन और वो सब चला दिया, मतलब हाउ टू एक्सेस बटन इन जावा फाइल, मतलब उसकी क्लिक इवेंट और वो सब हो गया है. हाँ ना, कुछ बोलो तो मुझे पता चले. ओके, No, ma'am. ओके ओके. एंड कोई भी कैसे व्यू हो उसे कैसे एक्सेस करना है इन मेल, मतलब मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल. डू यू नो दैट? हाँ ना, बोलो कुछ तो मुझे पता चले. No, ma'am. ओके, नो प्रॉब्लम.
So this way you can set ID. Okay, now let's go to the next attribute, that is text. So if you want to set the text of the particular text view, right, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो. जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं रखना, मुझे रखना है मैड, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ. आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर. ठीक है, आई कैन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम हियर, और एल्स दूसरा एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं उसकी जो strings.xml फाइल है, ठीक है, वहां पे जाके एक नया टैग ऐड कर दूं स्ट्रिंग में. तो स्ट्रिंग, उसका नाम मैं दे रही हूँ मैड. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैपिटल में मैड क्लास. And if I want to access this particular string mad class in my XML, then what I need to do, I have to just write @ उसके बाद हमारा जो क्लास नेम है वो एक्सेस हमें करना होगा. फॉर एग्जांपल आवर क्लास नेम इज strings.xml, राइट, जिसके अंदर हमारी ये जो नई मैड वाली जो स्ट्रिंग है वो स्टोर्ड है. सो आई विल एक्सेस दैट. सो हियर यू कैन सी string app name and string mad, so we'll use this one, right? So now you can see the text mad class, right? अब आप सेम चीज जावा फाइल से भी कर सकते हो, ठीक है, पर आप जावा फाइल से जब टेक्स्ट सेट करोगे तो वो आपको रन टाइम पे ही दिखेगा. अगर आप एक्सएमएल से चेंज कर रहे हो देन इट विल बी विजिबल एट द टाइम ऑफ लाइक क्रिएटिंग इट, आप बाजू में ही देख सकते हो, ठीक है. पर अगर आपने जावा में चेंज किया देन यू कैन सी इट एट द रन टाइम. Now let's do that also, so you will get to know how to do it. ठीक है, तो for that first of all you have to bind your object. Okay, CSC2 वालों को ये चीज पता होगी as we have studied that in last lab. So but let's take an overview, so CSC1 वालों को भी पता चल जाए. Like in main activity.java, the first line is your package name. Okay, आपका जो टेक्स्ट व्यू मैंने ये जो क्रिएट किया है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसका नाम मैंने दिया है टेक्स्ट व्यू. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी टेक्स्ट व्यू नेम ओवर हियर, राइट, एंड हियर द पैकेज नेम इज आल्सो टेक्स्ट व्यू. ठीक है, these are the libraries which we have which are by default installed, जैसे कि है app compact activity and bundle. ठीक है, so basically the parent class is app compact activity, जिसे हमने extend किया है. So basically here in our activity the class name is main activity, right, which is extending app compact activity. अब CSC1 में लाइफ साइकिल तो हो गई है ना कवर, एंड्रॉइड लाइफ साइकिल. Yes, ma'am. हाँ, so basically you must know that there are few methods in Android life cycle, right? So the first method is on create. जब आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है at that time, first method will be called, it like first method which will be called is on create, right? और एक और चीज ये कि on create is a like already there, on create method is already there, so we need to call it like this, super.onCreate, right, उसकी parent method को call करने के लिए. And after that as you see this line set content view r.layout.activity main, तो basically ये क्या है, आपका जो XML फाइल है ना activity main.xml, उसको ये जो हमारी जावा फाइल है उसके साथ बाइंड करने के लिए हम set content view मेथड का यूज करते हैं, right? So you can see inside the brackets of this method as in parameter r.layout.activity main. So basically हम ये जो r है that is nothing but our r.java file. ठीक है, आपकी एक ऑटोमेटिक जनरेट होती है r फाइल जिसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस है, ठीक है, वो सारे ऐड हो जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो लेआउट, अभी आप देखो यहाँ पे लेआउट में एक ही फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ठीक है, तो लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल होगी. फिर आप अगर वैल्यूज में देखो तो वैल्यूज में क्या है, कलर्स है, स्ट्रिंग है, स्टाइल है, तो इनसाइड द वैल्यूज देयर विल बी कलर, स्ट्रिंग, स्टाइल्स. ठीक है,
And if you'll go further, then inside strings, we have created this new string, right? So inside the strings, there will be 2 strings available. So this way, whole R file is being managed. Okay. So if you want to access any of the resources, so you can access it with the help of R file. So it will be like this, R dot, फिर आपको जो भी उसका फोल्डर नेम है वो लिखना होगा. जैसे कि यहाँ पे मुझे XML एक्सेस करना है, ठीक है. सो आई हैव टू राइट लेआउट, देन डॉट एक्टिविटी मेन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नाम है एक्टिविटी मेन. So if you'll create a new project, then this will be already there. ठीक है, आपको ये सेट करवाने की जरूरत नहीं है, but you should know what it is. अगर आपको कैसे सेम एक्टिविटी में उसकी XML चेंज कर देनी है, then you can change it with the help of here, by changing this particular line, right? Okay. Now we were discussing about the text view, right? So to access the text view, we have to create an object of that particular text view in Java file. ठीक है, तो Java file में हम कहाँ पे object create करेंगे? Inside this class and outside the method, right? Because अगर हम class मतलब इस method के अंदर object create करेंगे, then its scope will be for this particular parenthesis only. यहाँ तक ही उसका scope रहेगा, right? अगर दूसरी कोई method outside of this on create method is created, then at that time you won't be able to access it, right? So let's create it over here. It is a text view, right? So text view, उसका कोई भी एक नाम दे दो ऑब्जेक्ट का. यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ TV, ठीक है. अब हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, बट हाउ टू बाइंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस XML. ये जो हमारा है यहाँ पे XML, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया है, उसके साथ बाइंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड है. सो विल राइट टेक्स्ट व्यू इक्वल टू, कौन सी मेथड है? CSC2 वालों को पता है, बोलो मेथड नेम. नो वन. द मेथड नेम इज फाइंड व्यू बाय ID. ओके, तो आपके जो भी व्यूज है, ठीक है, अवेलेबल व्यूज है, जरूरी नहीं है कि लाइक पर्टिकुलर लेआउट में ही, ठीक है, पूरी एक्टिविटी में जो भी व्यूज है आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस. सो उसके लिए R डॉट, फिर ID डॉट, और जो भी आपने ID दिया है वो, तो हमने आई थिंक टेक्स्ट व्यू ऐसा कुछ ID दिया था, हाँ, एडिट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट व्यू होना चाहिए उसका नाम, तो गलती से एडिट टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट 1 रख देते हैं. चलो, डन. अब एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, तो पहले 2 ही लाइब्रेरीज इंपोर्टेड थी, ठीक है. जैसे ही हमने ये टेक्स्ट व्यू लिया, तीसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई. फॉर एग्जांपल चलो हम बटन लेते, एक बटन B, तो देखो बटन की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई. अगर ये नहीं होती है, देन इट विल गिव एरर. इसे रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपल कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हो, ठीक है. राइट नाउ आई एम रिमूविंग दिस. और ये चीज ये भी देखो, मैंने कैसे बटन का जो ऑब्जेक्ट था वो रिमूव कर दिया, तो यू कैन सी दिस इज ब्लैक नाउ, ठीक है. सो अनयूज्ड जो लाइब्रेरीज होगी, दैट विल बी इन ग्रेइश कलर. तो हमने अभी बाइंड तो कर दिया हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसे, ठीक है, टेक्स्ट व्यू का. और यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू भी लिख देती हूँ, so there should not be any issues with that. Okay, ठीक है. So this way you can bind the text view in Java. अब yes, we were discussing about the text, ठीक है. तो यहाँ से तो आप कैसे चेंज कर ही सकते हो, पर अगर आपको जावा फाइल से चेंज करना है तो एक काम करते हैं, एक और स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है, एंड विल चेंज इट फ्रॉम जावा फाइल. सो लेट्स सी, स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे मैं दे रही हूँ नेम mad2, mad lecture, ठीक है. सो यहाँ पे अब हम एक्सेस कैसे करेंगे इसे?
tv So dot we can set text. yes, tv dot set text. ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी set text के डिफरेंट मतलब मेथड्स अवेलेबल है. ठीक है, तो आप कैरेक्टर सीक्वेंस पास कर सकते हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में आपको जो भी स्ट्रिंग पास करनी है वो करवा सकते हो. फिर आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स के अंदर कोई क्या बोलते हैं टैग कर आपने क्रिएट किया हुआ है, यू वांट टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, देन आल्सो यू कैन डू दैट, राइट. सो tv.setText r dot, just a minute. Hello. Yes, so we were discussing, you can set it like this, r dot string dot, suppose I want to access mat2, then mat2. ठीक है, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा. तो let's run and let's see, so you will get it. See, mad lecture, right? So this way you can change the text from the Java file. यहाँ पे अगर कैसे आपको डबल कोट में पास करना है तो भी कर सकते हो इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी स्ट्रिंग पास करनी है, यू कैन डू दैट. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज टेक्स्ट कलर एज इन नेक्स्ट एट्रीब्यूट. ठीक है, तो हाउ टू एक्सेस इट, एंड्रॉइड टेक्स्ट कलर, हियर यू कैन सी. ठीक है, यहाँ से आपको जो भी कलर चेंज करना है यू कैन डू दैट. तो यहाँ पे कौन से कलर्स अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक इट पिंक, देन हियर इज ऑलरेडी अवेलेबल कलर एसेंट, राइट. तो नाम दे दो, उसे एक्सेस कैसे करना है, तो @color स्लैश जो भी टैग नेम है वो, तो कलर एसेंट. तो नाउ यू कैन सी द कलर इज पिंक, राइट. अब सेम चीज को आप जावा फाइल में भी एक्सेस कर सकते हो. तो उसके लिए मेथड कौन सी है, tv.setTextColor, set text color. यहाँ पे भी दो क्या बोलते हैं मेथड अवेलेबल है, इंटीजर कलर एंड कलर स्टेटलिस्ट कलर. ठीक है, तो यू कैन सेट द कलर बोथ पे. ठीक है, यहाँ पे भी कैसे हम सिंपल इस तरीके से करवा देते हैं कलर्स फाइल से. तो r डॉट कलर डॉट, फिर जो भी कलर्स अवेलेबल है वो कलर आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, ओके, फाइल्स showing error, just a minute. Oh, right. So this way there is another attribute which is text size. तो यहाँ पे आप किस तरीके से टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हो, एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज. ठीक है, एंड यू कैन सेट द साइज, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग इट 30. ठीक है, सो यू कैन सी द साइज इज इंक्रीज, राइट. यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के क्या बोलते हैं वो देख सकते हो, उसके स्केल. ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट वन इज एसपी. एसपी क्या होता है, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल. ठीक है, देन देयर इज डीपी, डेंसिटी पिक्सल. ठीक है, देन देयर इज इंच, पिक्सल, पॉइंट, different scales are available. So basically for text we can choose either SP or DP. ठीक है, डेंसिटी पिक्सल और स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल दोनों में से एक चूज कर सकते हो आप. सपोज इफ यू आर यूजिंग SP, then this is the size. If you are choosing DP, okay, then it will like look like this.
डेंसिटी पिक्सल, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप टेक्स्ट साइज जावा फाइल से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सेट टेक्स्ट साइज, दैट्स द मेथड। Now, the next attribute is text style. Okay, तो उसे एक्सेस करने के लिए Android colon text style, आपको जैसे भी स्टाइल रखनी है रख सकते हो। यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू मेक इट बोल्ड यू कैन चूज बोल्ड, ठीक है। इफ यू वांट टू चूज इटैलिक देन हियर इट इज, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई मोर देन वन स्टाइल, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। हाउ, लेट्स सी। सपोज आई वांट टू अप्लाई बोल्ड एंड इटैलिक बोथ, सो मेक द 5 एंड दिस वे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, बस उसे पाइप से ज्वाइन करना होगा, ठीक है। सो यू कैन सी दिस बोल्ड एंड इटैलिक, ठीक है। अब इसी चीज को आप जावा में भी कर सकते हो। सेम मेथड रहेगी, जैसे यहाँ पे टेक्सटाइल नाम है तो मेथड का नाम होगा सेट टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। एंड इन द ब्रैकेट यू कैन चेंज द स्टाइल। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, राइट, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पे आइदर डायरेक्टली हेक्साडेसिमल कोड लिख सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप colors.xml में एक हेक्साडेसिमल कोड स्टोर करवा सकते हो कोई टैग में और उसे यहाँ पे एक्सेस करवा सकते हो। सो हियर यू कैन सी मैड क्लास में बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, राइट। एंड इसी को आपको अगर कैसे वहां पे चेंज करना है जावा फाइल में, तो सेट बैकग्राउंड मेथड इज देयर, ठीक है। अब हाँ, एक और चीज बतानी रह गई। एज यू कैन सी देयर इज two attributes which are already present, right? Layout width and layout height. तो बेसिकली क्या होता है, layout width एज एन आपका जो भी पेरेंट, नॉट पेरेंट सॉरी, आपका जो भी व्यू होगा ना जो करंटली सिलेक्टेड है उसका लेआउट का विथ, ठीक है। मतलब बेसिकली ये हमारा मैड क्लास टेक्स्ट व्यू है तो उसका विथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, देखो लेआउट विथ लेआउट हाइट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। So this layout width and layout height attribute belongs to the outer what can I say layout, हमारा जो constraint layout है उसके parameters है, ठीक है। But inside this text view these parameters are for this text view, ठीक है। अब उसके जो भी हमारे layout width and height है, ठीक है, वो आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको 20 रखनी है, 30 रखनी है, 50 रखनी है, यू कैन डू इट लाइक दैट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना है देन देयर इज 2 मोर ऑप्शंस अवेलेबल। एक तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो wrap कंटेंट, मतलब आपका जो भी कंटेंट लिखा होगा ना टेक्स्ट बुक की जो भी साइज होगी, सपोज हमने यहाँ पे सिर्फ मैड क्लास लिखा है, पर सपोज कि हमने कोई पर्टिकुलर पूरी सेंटेंस लिखी होती तो उसके जो साइज रहता सेंटेंस का उतनी बड़ा हो जाता, मतलब उसका विथ, ठीक है। एंड हाइट भी उसके अकॉर्डिंग रहता, आपका जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। सो दैट इज wrap कंटेंट, आपका जो कंटेंट है उसे wrap करेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम जो टेक्स्ट है उसे थोड़ा क्या बोलते हैं बड़ा करके देखते हैं। एज इन लेट्स राइट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ मैड लेक्चर, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी ये जो दिख रहा है आपको आउटर लाइन, ठीक है, दैट इज द विथ, करंट विथ। सो उसके कंटेंट के हिसाब से वो चेंज होगा, दैट इज wrap कंटेंट, ठीक है। नाउ अनदर ऑप्शन इज मैच पेरेंट। लेट्स सी मैच पेरेंट क्या करता है। एज यू कैन सी राइट, पेरेंट कौन सा है पर्टिकुलर इस व्यू का, आउटर लेयर, ये जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है वो, ठीक है। तो उसके जितने विथ होंगे उतने विथ का ये बन जाएगा, मतलब हमारा टेक्स्ट व्यू की जो विथ है वो उतनी रहेगी। सो दैट इज मैच पेरेंट। सपोज हाइट में भी हम कर देते हैं मैच पेरेंट तो क्या होगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, मतलब हमारा जो कंटेंट है वो पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा, ठीक है। लेट्स सी, देखो, ठीक है।
So there is the difference between match parent and wrap content. Okay. हमने कंस्ट्रेंट में मैच पेरेंट यूज किया है बिकॉज हमारा जो आउटर लेयर है वी वांट टू मेक द साइज अकॉर्डिंग टू दैट्स व्हाई. ठीक है. सो दिस आर द फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट व्यू. इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है. ठीक है. जैसे कि ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी आपका जो लेफ्ट बॉटम टॉप राइट उसके साथ सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. बट राइट नाउ एज वी आर यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट सो वी डोंट नीड टू यूज द ग्रेविटी. ठीक है. और आप ये जो 4 पैरामीटर देख रहे हो, ठीक है, लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, लेआउट कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, सो दिस आर द एट्रीब्यूट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट लेआउट. ठीक है. आपको कैसे सेट करना है आपका एट्रीब्यूट, उसके लिए ये होता है. When we'll learn about the constraint layout, at that time we'll learn about this parameters in detail. ठीक है. For now you can see that for constraint layout आप क्या कर सकते हो. For example कोई भी नया ऐड किया है कंपोनेंट, so to add it in constraint layout. ठीक है. CSC2 वालों ने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे आप अगर इसे रन करोगे, ये टेक्स्ट व्यू वाला ये जो छोटा दिख रहा है, राइट, दैट इज नॉट कंस्ट्रेंटेड. ठीक है. ये अभी आपका क्या बोलते हैं प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला जाएगा. वैसा ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसे ऐड करना होगा कंस्ट्रेंट में. सो यू कैन इन्फर कंस्ट्रेंट फ्रॉम हियर, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट. तो उसके जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट करेगा. ठीक है. जस्ट अ मिनट, लेट्स सी वन थिंग. अभी देखो मैंने इन्फर कंस्ट्रेंट को रिमूव कर दिया है. ठीक है. और हाँ, इन्फर कंस्ट्रेंट को आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐड किया, इफ यू वांट टू रिमूव द इन्फर कंस्ट्रेंट तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द डिलीट ऑल कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. अभी देखो मैंने सारे कंस्ट्रेंट्स रिमूव कर दिए, तो यू कैन सी यहाँ पे वो जो थे क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट के रिलेटेड पैरामीटर दैट आर नॉट देयर, राइट. पर अभी दूसरे पैरामीटर्स आ गए, लेआउट एडिटर एब्सोल्यूट एक्स एब्सोल्यूट वाई, मतलब एक्स से कितना डिफरेंस चाहिए, वाई से कितना डिफरेंस है वो बता रहे हैं. ठीक है. तो एक्स से 62 dp, मतलब लेफ्ट में 62 किया एंड वाई से 345 dp, सो ऊपर से 345 की स्पेस रखी. ठीक है. सेम तरीके से यहाँ पे देखो 145 dp, तो टेक्स्ट व्यू है दैट इज 145 के डिफरेंस पे एक्स से, एंड वाई से 458. ठीक है. अब सेम चीज को मैं फिर से कंस्ट्रेंट ऐड कर रही हूं दोनों में, सो यू विल सी इट इज बीइंग कंस्ट्रेंटेड. तो यहाँ पे देखो नाउ द कोड रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट इज एडेड. ठीक है. ओके. So this way you can add the constraint. We'll learn about the particular this attributes, but later. ठीक है. I hope it is clear to you all. Now the next control, or you can say view, is edit text, but we will start that in the next session. Okay. Okay, your attendance is being recorded, so I'm ending this meeting now. And जिसकी भी आज लैब है वो टाइम पे ज्वाइन कर लेना. ठीक है. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.